Hello, my dear students. Welcome back again in your computer class. Here in this computer class, my dear students, we are going to cover chapter number 7th of your book, and the name of the chapter is Cloud Computing. Cloud Computing हम किसको कहेंगे या क्या होती है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या करते हैं हम इसमें? आइए सारी चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं अपनी इस क्लास में. ओके, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन. For the information technology IT sectors, cloud computing is currently quite popular. आज के टाइम पे ये काफी पॉपुलर है. Through the internet, cloud computing allows users to access on-demand computer resources, including storage and even infrastructure. को करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट कंसिडर नेसेसरी आइटम फॉर स्टार्टिंग IT business. Initially, we would require a workspace, server and other computer hardwares and software to operate it. Then in order to run our computers, cooling systems and business management professions, we would want electricity 24/7 आपको चाहिए. ठीक है. अब क्लाउड कंप्यूटिंग से हम क्या कर पाते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड्स यूजर्स और दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट. इंटरनेट के थ्रू हम ये सारी सर्विसेज कर पाते हैं. सो टू क्लाउड computers, it is use remote computing resources by broadband connections with the goal of maximizing computing and minimizing cost. Resources all include emails, messages, schedules, music, photo, video, games. ये सारी सर्विसेज आती हैं. सर्विसेज हमें यही तो चीज़ों को करनी है. और क्लाउड स्टोरेज में क्या होता है, जब हम अपना ऑनलाइन ही अपना स्टोरेज स्टोर करके रख पाए ताकि वो कभी भी हमारा डिलीट ना हो. So cloud storage is the internet service that provides storage facilities to the computers. Users को storage facility provide करता है. Some of these resources and services are free from some are paid. कुछ free होती है, कुछ paid भी होती है. Advantage क्या है इसका, क्यों यूज करूं मैं इसको? सबसे पहले there is a probably the most cost efficient method to use, maintain and upgrade करने के लिए सबसे important method है. It eliminates the capital expenses of buying hardwares and softwares. आपको कुछ करना ही नहीं, ऑनलाइन अपना डाटा को स्टोर कर पा रहे हो, यूज कर पा रहे हो. It also allow users to get large storage capacity for storing data मिल पाता है. It also allow access files on the internet from computer or devices that internet access. It is less expensive होता है definitely, yes, and it allow users to बैकअप करना और एक्सपेंसिव कम है ये. और ये आपको क्या मिल पाता है? इट ऑल्सो अलाउज यूजर टू टाइम क्रिटिकली डाटा एंड इमेजेस इमीडिएटली वाइल अवे फ्रॉम द ऑफिस और लोकेशन. अब देखिए क्लाउड सर्विसेज कौन कौन सी हमें प्रोवाइड करता है, कौन कौन. सो क्लाउड कंप्यूटिंग is a technology that uses the internet to offer a variety of service to the computer user. That means internet की help से हम internet की facilities को use कर पा रहे हैं. Cloud storage can be used if a user own computer does not have enough storage. उसके कंप्यूटर में खुद से स्टोरेज नहीं तो क्लाउड स्टोरेज का यूज करता है. Some services provide charge for the service, कुछ चार्ज लेते हैं. Numerous companies has begins deploying cloud services including the Google Cloud Platform, Amazon Web Services and Microsoft Azure. यहाँ पे ये सब चीज प्रोवाइड कर रहे थे आपको ऑनलाइन अपना डाटा को स्टोर करने के लिए अगर आपका सिस्टम में डाटा फुल हो चुका है. ठीक है, तो ये सारे हमारे पास आ गए थे. अब मेरिट्स क्या थे क्लाउड कंप्यूटिंग के? सबसे पहले फ्लेक्सिबल है, ये कंफर्टेबल है, बहुत सारी सर्विसेज मिलती है, रिसोर्स पूलिंग हो पाती है, ऑन डिमांड सर्विस आपको तुरंत मिल जाती है, ऑटोमेशन हो पाता है, ये सारी चीजें. अब ये क्या है ऑन डिमांड सर्विसेज और ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज में क्या आता है? इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एंड एसेंशियल फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड अनेबल द क्लाइंट्स टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द सर्वर अप टाइम abilities and allotted network storage capability as per the needs without requiring human interventions. ऑटोमेशन में क्या है? एबिलिटी टू क्लाउड कंप्यूटिंग ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो कर दी जाएगी. रेसिलियंस एंड अवेलेबिलिटी होना, दैट मीन्स कि वो कितना फास्ट सर्वर काम करता है वो चीज पे डिपेंड करना. मल्टी टेजेंसीज होना, सो इट इज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर दैट अलाउस अ सिंगल प्रोग्राम इंस्टेंटली टू सर्व सेवरल यूजर्स, ग्रुप्स को सर्व करने का काम करता है. फिर
फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना. सो द कंपनी मस्ट स्केल्स एज द कंप्यूटिंग डेवलप्स. With cloud computing, companies can scale up their resources, computing needs increase, and scale down the resources as computer needs decreases. अपने resources को इस तरीके से scale up, scale down कर सकते हैं. कंफर्टेबल पेमेंट स्ट्रक्चर्स भी देती है ये. सो दिस पेमेंट स्ट्रक्चर्स क्रिटिकली एनहेंस इट्स एज एंड कॉस्ट कटिंग प्रोसेस करता है. इन द क्लाउड कंप्यूटिंग में आप यहाँ पे जो पेमेंट्स होते हैं बहुत इजीली तरीके से पे कर पाते हैं. एक्सीलेंट सर्विस आपको बहुत सारी मिल पाती है. रिसोर्स पूलिंग हो पाती है. दैट मीन्स पूअर लार्ज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं पूल लार्ज स्केल्स IT रिसोर्सेज का. तो ये सारी चीजें हम कर पा रहे हैं. प्राइवेट क्लाउड्स होते हैं, पब्लिक क्लाउड्स होते हैं, हाइब्रिड क्लाउड्स. प्राइवेट क्लाउड्स होते हैं जो प्राइवेट कंपनीज के होते हैं. पब्लिक क्लाउड्स मोस्ट कॉमन टू एवरीवन एंड हाइब्रिड मिक्स्ड ऑफ दीज टू थिंग्स. ठीक है. अब क्लाउड सर्विस मॉडल हमारा किस तरीके से रहता है, ये इस मॉडल पे ये हमारा चलता है. अब ये मॉडल है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये है IaaS. प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर द इंटरनेट और पे एज यू गो बेसिस पे ये रहता है. ये प्रोवाइड कर देता है आपको सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क एंड एवरीथिंग. ठीक है. एग्जाम्पल, रिटेलर्स मे गेट टू इंक्रीज अकोमोडेट एडिशंस ट्रैफिक टू देयर वेबसाइट ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन. अपने फेस्टिवल सीजन के उसको पता है कि वो उस टाइम पे उसका डिमांड बढ़ेगी उस चीज की, तो उसको इंक्रीज कर देते हैं. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, दैट मीन्स इसमें डिलीवर करते हैं सॉफ्टवेयर को. ठीक है. हार्डवेयर एज अ सर्विस, दैट मीन्स यहाँ पे मॉडल ऐसा डेवलप किया जाता है जिसमें हार्डवेयर को दिया जाता है. प्लेटफॉर्म, ये सिर्फ प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं. जैसे ये आपको प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब वगैरह, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है. इसमें आपने जो करना है करो. नाउ माय डियर लर्नर्स, आई एम होपिंग सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ. ग्रेट. अब देखते हैं गूगल ड्राइव क्या होती है. गूगल ड्राइव से हम क्या समझते हैं. सो गूगल ड्राइव, गूगल क्रिएटेड द क्लाउड स्टोरेज सर्विस नोन एज गूगल ड्राइव. सो गूगल ने अपनी एक क्लाउड स्टोरेज डिवाइस क्रिएट की है जिसको हम गूगल ड्राइव कहते हैं. Google Drive is allow us to store our files online and view them from any location in the world. हम कहीं पे भी कैसे भी इसको क्या कर पाते, देख पाते. गूगल ड्राइव में जो भी चीज़ आपने स्टोर की हुई है आप ड्राइव पे अपने कहीं पे भी देख पाएंगे. और यहाँ 15 GB का आपको फ्री स्टोरेज मिलता है. ठीक है. ओपनिंग अवर गूगल ड्राइव को ओपन कैसे करेंगे. सबसे पहले कुछ नहीं करना, साइन इन पे क्लिक करना है. साइन इन में हमने ईमेल ID और पासवर्ड वगैरह अपने क्लिक कर देने हैं और फिर एंटर कर देना है. और जैसे ही आपका ईमेल एंटर होगा तो ईमेल के साथ आपको ये सारी गूगल की सर्विसेज आपको मिल जाती है. मैप्स हो गए आपके, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, जीमेल हो गया, आपके पास गूगल ड्राइव्स हो गई, ये सारी की सारी गूगल के सर्विसेज आपको मिल जाते हैं. और गूगल ड्राइव पे जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके पास गूगल ड्राइव आपके पास आ जाएगी. सो गूगल ड्राइव विंडो अपीयर्स. द फाइल क्रिएटेड इन द गूगल डॉक्स इज स्टोर इज हियर. यहाँ पे आपको देखती है. अपलोडिंग, अब यहाँ पे अपलोडिंग डाउनलोडिंग कैसे करते हैं. कोई फाइल अपलोड करनी है आपने गूगल ड्राइव पे तो कैसे करेंगे. सबसे पहले न्यू में जाना है. ऊपर न्यू का ऑप्शन आया, न्यू में आपके पास ऑप्शन है फाइल अपलोड का ऑप्शन. फिर वहाँ पे आप क्लिक करेंगे. फिर आपके पास ये डेस्कटॉप खुल जाएगा. आपकी फाइल आपने कहाँ से लेके कहाँ पे अपलोड करनी है, मतलब गूगल ड्राइव पे तो होगी और वो आपकी फाइल है कहाँ पे, डाउनलोड में है, डॉक्यूमेंट्स में, कहाँ पे, उस पर क्लिक करेंगे. जो भी फाइल आपकी ओपन और डाउनलोड करनी, अपलोड करनी है आपने अपने गूगल ड्राइव पे, इस पर ओपन कर देंगे. और जैसे ही आप इसको ओपन कर देंगे ये आपके गूगल ड्राइव पे शो करने लग जाएगी. अगर ये गूगल ड्राइव पे शो हो गई है ये फाइल आप कहीं पे भी कैसे भी देख पाएंगे इजीली. ऑर्गेनाइजिंग करना है अपने फाइल एंड फोल्डर को तो कैसे करेंगे. So folders help us to organize the file in the Google Drive. Folders और files हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी चीज़ें हम easily organize कर पाएँ, easily हमें वो चीज़ें मिल पाएँ. तो सबसे पहले वही चीज़ न्यू में जाएंगे, फोल्डर में जाएंगे, फोल्डर के बाद अपना नाम क्रिएट कर देंगे जिस नाम से आपने वो फोल्डर बनाना है और क्रिएट कर देंगे. जैसे आप क्रिएट करेंगे वो आपका फोल्डर बन जाएगा. ठीक है. अब आपने वो फोल्डर को मूव अ फाइल और अ फोल्डर, वही फोल्डर या मूव करना है उसको कि एक जगह से दूसरी जगह, तो कैसे करेंगे. वो कोई फाइल हो सकती है, फोल्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. उसको आपने मूव करना है तो आप कैसे करेंगे. मोर, आपने क्लिक ऑन फाइल पे क्लिक करेंगे, मोर एक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास देखो आएगा मूव का ऑप्शन. आपने उसको मूव कराना है उस फाइल को. तो मूव कहाँ पे कराना है, जहाँ पे क्लिक कर देंगे वहां पे वो मूव हो जाएगी. अब जो आपकी पूरी फाइल है उसको आपने शेयर करना है किसी XYZ के साथ, कहीं पे भी, व्हाट्सएप पे करना है, सोशल नेटवर्किंग साइट पे, कहीं पे भी आपने उस गूगल ड्राइव की फाइल को शेयर करना है. So after uploading and organizing the file in the Google Drive, you can also share these files or
फोल्डर्स विद आवर फैमिली और फ्रेंड्स। कैसे कर सकते हैं? क्लिक और सिलेक्ट एंड क्लिक द डिजायर फाइल और द फोल्डर यू वांट टू शेयर, क्लिक इट ऑल। ओके, क्लिक ऑन शेयर बटन पे आपके पास क्लिक करेंगे, ऊपर देखिए शेयर का ऑप्शन आता है ना इधर। फिर आपके पास यहाँ पे आएगा कि आपने शेयर करना, उसकी आईडी मेंशन करनी पड़ेगी और सेंड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाता है और वो फाइल उसके पास शेयर हो जाती है। नहीं तो आप उसी फाइल को क्लिक करेंगे ना तो आपने डाउनलोड या फिर आपके पास आएगा शेयर विद देम। ओके, सो वो भी ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं। अब साइनिंग आउट कैसे करना है अपने इस जीमेल को, अगर आपने साइन आउट कर दिया तो आपके जितने भी अकाउंट्स है वो ऑटोमेटिकली साइन आउट हो जाएंगे वहां से। तो गूगल आइकन पे जाएंगे क्लिक और वहां पे नीचे आता है गूगल आइकन्स में आपके पास साइन आउट का ऑप्शन। तो वो जैसे आप साइन आउट क्लिक कर देंगे तो वो आपका सिस्टम से वो चीज आउट हो जाएगी, मतलब साइन आउट हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये सब चीजें हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ओके, तो ये था आपका पूरा क्लाउड स्टोरिंग का कि किस तरीके से हमारी स्टोरेज हम कर पाते हैं। ग्रेट, सो ये क्लास और ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। मिलते हैं अब आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। टिल देन, बाय बाय।